लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेजेंड है सुनील सुब्रमण्यम सर। ही इज एमडी एंड सीईओ ऑफ सुंदरम म्यूचुअल फंड्स। उसी के साथ-साथ ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 25 इयर्स इन दिस फील्ड। और साथ ही सर का जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था अराउंड 3 मंथ्स बैक, उसमें सर ने सिर्फ 2 बात बोली थी, जरूरत पड़े तो वापस जाके देखिएगा। पहली थी, ही इज वेरी बुलिश ऑन द मार्केट, उस समय जब बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी। सेकंड, he was bullish at that time on banking, financials and NBFC sector। दोनों चीजों को हमने एक्चुअली मार्केट में होते हुए वैसा ही कुछ देखा है। आज के इस एपिसोड में हम सर से सीखने वाले हैं सर की कंप्लीट जर्नी। आखिरकार उन्होंने क्या-क्या चीजें कैसे-कैसे सीखी है और क्या आप और हम सीख सकते हैं। सुनील सर, सबसे पहले आपका वेलकम है इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में। थैंक यू सर। मेरी शुभकामनाएं सभी आपके ऑलमोस्ट 3 लाख जो सब्सक्राइबर्स है उनको, बधाई हो आपको भी इस मेजर अचीवमेंट में। ऐसी आई थिंक इट्स हिस्टोरिक अचीवमेंट एंड आई थिंक डेफिनेटली तालियां बनती है आप। अरे थैंक यू सो मच सर फ्रॉम कंप्लीट फैमिली। सर, सो पहला क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए ये है सर कि सर आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल जर्नी, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्टिंग कैसे हुई थी? स्टार्टिंग क्या हुई थी, कैसे हुई थी और क्या हुआ था? देखिए, मैं तो समझूंगा कि मेरी स्टार्टिंग हुई थी एज अ ड्रग एडिक्ट। इसको गलत मत लीजिए। ड्रग एडिक्ट माने ओपियम। ओपियम माने ओपीएम, विथ अदर पीपल्स मनी। क्यों मैं बता रहा हूं कि सी मेरी आई हैड बेसिकली सेड कि जो भी मैं वेल्थ क्रिएशन करूंगा उसमें क्या है मेरे पास कि आई हैव बिल्कुल जीरो इनहेरिटेड वेल्थ। I was starting from square one. Okay, even my wife's family, whatever their wealth, I said I'm not going to touch it. So if I want to build it, the only thing which is certain to me is a monthly income, assuming that I will be working. Because starting a business was not in my thought process. Basically, because my father had a bad experience with the business, so I said no, I'll be. So I knew that I've got a future income. Okay, monthly income. Okay, and what I said is definitely backing my skills at doing whatever job I get to do well. I said my income is definitely going to grow at a particular pace. So now I said if I have to create wealth, right, I have to mortgage my future income. Right, because I don't have it. And when I do that, you know, they do no share के valuation में they do a discounted cash flow. वैसा मैंने भी अपने फ्यूचर इनकम का एनपीवी निकाला कि इफ आई डोंट डू एनीथिंग, और बैंक डिपॉजिट में मैंने रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दिया मेरे सेविंग्स को। तो अज्यूमिंग अ सर्टेन थोड़ी तनख्वाह बढ़ेगी, सो I put out a career plan. So one thing about me is that I'm very rational, left brain oriented person. That is math, numbers, figures, analysis. ये मेरी बस की बात है, right? Because I'm a science student, so I did my masters from IIT Madras. So I'm basically a science student. So for me, this number crunching comes very easily. So I sat down and did an NPV की मैंने बैंक डिपॉजिट में लगाया और assuming changing बैंक डिपॉजिट रेट सब मैंने मॉडल में डाल दिया था, और I had arrived at it and I said ये नंबर तो मेरे लिए is not even 1% of what I want to be. So now how do I convert this? We identified 3 asset classes. I will be invested in it at all times. Rational attitude, one asset class from the right brain, emotional attitude, but that right brain asset class actually has proved to be a very good wealth creator for me, though I did it for emotional reasons. Right? You will understand what I am talking about, but let me explain it. So the 2 asset classes from the left brain perspective I chose was, one was real estate. Okay, second was equities. ठीक है। Okay, and I said that I will not enter this fixed income asset class. Okay, because I found that for a long term wealth creation, that little bit that I get, I mean, whatever you get from your surplus money putting in parking in fixed income mutual fund, that's different. Not a wealth creator. Wealth creation के लिए मैंने that time I decided कि ये fixed income में guessing the interest rate curve and then putting in money to get money, that's not, I didn't want to get into that. So these two are my left brain माने जो analytical thinking, rational, logical होता है ना, लोग कहते हैं scientists कहते हैं कि left brain से वो सब चलता है. Okay, और राइट ब्रेन वाला एसेट क्लास मैंने चुना था गोल्ड. एंड आई सेड देयर इज एन इमोशनल. क्या इमोशन थी कि आई सेड दैट आई विल सैक्रिफाइस द मेकिंग चार्जेस एंड वेस्टेज व्हिच कम्स फ्रॉम गोल्ड एज द कॉस्ट ऑफ प्लीजिंग माय स्पाउस.
So, so I simultaneously started SIP in all the three asset classes. So in Chennai, the jewelers, all of them have this scheme where महीने में आप पैसा डालो एक gold scheme में, they throw in one extra installment. So अगर 12 महीने का है, तो आप 11 महीने के लिए दो, 12वीं वो दे देते हैं, and you can buy gold of that value. So right from the day one, after I got married, right, I started this gold SIP with various jewelers. First, I tried with our local jewelers. Then I said, "Okay, better because I don't have the time to keep judging each one." So Tanishq se, so Tata's ka brand name mein trust mein, I have continuously had this SIP in gold with Tanishq for after the first 2-3 years. I switched to Tanishq. So that is one asset class where मेरे को खुशी हुई और सेकंड मेरी की बेटी हुई तो बेटी की शादी में तो गोल्ड की जरूरत थी. So automatically, I won't believe it, when my daughter got married, which was like 5 years ago, right, I didn't buy a single rupee worth of gold. Because what I had already bought, right, everything was more than adequate to take care. So at the time of the wedding, there was no gold expense for me. And then in the other two asset classes, right, obviously so this is my journey where I started. So like in real estate, you're essentially doing with other people's money, na? Because you're taking a housing loan. So that's so 20% you put, 80% housing loan company puts. So as a real estate asset class was entirely like I only put the margin. And what I always did was that I never invested in real estate purely as capital appreciation. Because I need to free up my income, I always put it in rental yielding assets. So never bought land, never bought even commercial real estate. I didn't enter because that market needs study, goes through cycles. So residential real estate, which I can give on long term rent to somebody, right, and that will come and offset the EMI, right? And I also was very prudent. So I said, okay, though housing loan companies say 80-20, I would never do more than 60-40. Means 40% I'll put my own saving, 60% only I'll borrow, because I wanted the EMI and the rental to be somewhat close to each other. Later, the property is hardly 2 to 3% is your yield, rental yield, and you're paying 8%. And those days, the taxation was so advantageous. If you get the tax benefit on the principal through ATC, you get the tax benefit on the interest deduction, and you can set it off. So you won't believe it. For 15 years, I was running a loss on house property and setting off against my salary income and saving tax on it. Because the way the computation was, there are a lot of complicated complication, but I knew all of them by heart. I cracked it, so I knew it. So that was other people's money I took along that stream. So I think one question I saw what you asked me कि क्या गलती की थी? गलती मैंने ये की थी कि वहां पे भी मैंने OPM ट्राई किया. I started borrowing money to put into equity market into this. So there I burnt my fingers. Because when the market crashed, right, one of those post Harshad Mehta scam, this, that time I was really stuck. So then I made a decision कि equity market में ये borrowed money से काम करना बंद करना चाहिए. So after the first few years where I borrowed money to put into equity markets, I said no. इसके बाद, this is because the sudden 1 year's market correction can take away and you're left to pay the EMI and all of that. So one learning to me was that in equity, right, this margin trading, this doing that kind of a thing. This hazard is, if I was a businessman, it was different. But since I was a salaried employee, ultimately I had to repay the debt from my salary, when the equity market crashed. So one of the biggest learnings is that in the equity market, when you are investing for the long term, try and put your money, current money and your future money, but try to avoid a borrowing. So after that day, I have not borrowed to invest in equity. So that's one. That's the way I built my whole investment journey, right? So the first lesson I learned was that equity may fixed cost of debt should not be blended with the variable return of equity. In real estate, it was okay because you're getting a fixed return of rental and a fixed EMI paying out. So both are fixed to fixed. As long as you match the gap properly,
you're safe today. But in equity market, you're getting a variable return because इंडिया में ऐसा नहीं है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक में उतना डिविडेंड आ गया तो आप इंटरेस्ट भी भरो और हाथ में भी पैसा बढ़ाओ. नहीं, not happens. Doesn't happen like. सर बिकॉज अभी आपने हर्षद मेहता का नाम लिया और हर्षद मेहता की सीरीज 1992 भी बहुत फेमस हुई है. सो हाँ. अगर आप माइंड नहीं करें तो वो कौन सा शेयर था जिसके ऊपर आपने लोन लेके इन्वेस्टमेंट किया था और आपको लॉस हुआ था? वो शेयर का नाम भी अगर आप शेयर कर सके कि ऐसा क्या हुआ था कि हमने लोन लिया, ताकि सब लोग समझ सके कि अगर हम लोन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं, मे बी ट्रेडिंग करते हैं, तो कितना बुरा फंस सकते हैं. नो, एक्चुअली मैंने क्या हुआ था कि मैंने भयंकर पैसा बोरो करके दो स्मॉल कैप शेयर में मैंने निवेश किया था. एक था क्लच ऑटो और दूसरा था ग्रिमैक्स सीएनसी. सो समबडी ने टिप दिया कि ये तो मल्टी बैगर थे, एक साल में ट्रिपल हो जाएंगे. तो दोनों का दोनों दिवाला हो गया मेरे. So these are the two, and that's in fact that also modified my thought process in a very significant way because by that time I'd also gained some experience with investing in mutual fund. Okay. And I found that कि normally मैं भी ये कहता था earlier कि economy अच्छी चल रही हो तो small cap is better than mid cap is better than large cap. Economy में हालत ठीक नहीं है तो reverse करो, right? But इसमें problem क्या हुआ? I found with a very bitter learning for me कि small cap and mid cap में जमीन आसमान का फर्क आ गया. Okay, a mid cap can be bought for a lifetime. Either through mutual fund or a good quality mid cap stock, but a small cap can never be because they are too subject to market fluctuation. So in small cap you can't say कि मैं 10 साल के लिए खरीद के बैठ जाऊं because the world changes, industry changes, dynamic changes that they cannot cope. So they go through extreme high and extreme low. So ये fill it, shut it, forget it जो कहते हैं ना, sometimes कहते अरे Colgate Palmolive मैंने ले लिया या Infosys को IPO के टाइम में ले लिया तो भूल जाओ मैं तो मेरे बेटी की शादी सभी उसमें करवा लिया. See, those are all very rare stocks. Okay. So yeah, so one lesson I learned while I did this was also that permanently if you want to invest, right, then you shouldn't have small caps as a permanent part. It can always be a part of your portfolio, but you have to keep changing. You have to constantly churn the small cap portfolio either as stocks or within mutual fund so that you catch the timing right and play. Whereas mid caps and large caps, you can by and large say, okay, yes, this was a learning from me, and coming from Sundaram, it was a big learning from me. नो एब्सोल्युटली राइट सर. डोंट मैरी अ स्टॉक, प्ले द डेटिंग गेम, स्पेशली जब हम लोग स्मॉल कैप्स को यूज कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है सर. सर अभी आपने बात करी है कि कुछ फेलियर्स की बात करी कि कुछ कैसे हमने लोन लेके शायद फेलियर हो गया या थोड़ा सा सेटबैक लगा. सर कौन सा मल्टी बैगर था जिसने आपको बिल्कुल गेम चेंजर हो गया था आपके लिए? एक ऐसा स्टॉक या एक ऐसा मूवमेंट या एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हो और वो आपके लिए कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी हुआ? मैं कहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मैं 3 स्टॉक को चुनूंगा जो अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में हैं, जो मैंने बहुत पहले से मैंने आइडेंटिफाई किया. So I had basically identified by BFSI में, I told you, okay, I'm a long term, it's a favorite of mine. So for me, my first share purchase was SBI. Okay, and SBI, the reason for buying was because I was an employee of SBI at that time. Okay, so I can't claim great knowledge about it, but because when I went to work for the company, the way the company was running, the kind of command it had in the market, I think ये कभी डूब नहीं सकती है. So it was basically that confidence based on which I said, okay, this is a great buy, and till today I think that while market had not respected it to the extent it should have, I still believe that एक दिन आएगा जब it will come through. But even then, it has not been a disappointment. It has given decent returns, but I feel that its potential is still not fully seen in terms of what that company stands for. Okay, so that's one which is a winner in my view. May not be in terms of actual compounding returns, but I still feel that compared to the fact that so many other banks have gone down, that is also to be cast. That is one. Second one was that I was, very lucky to grab HDFC Bank. Because of my knowledge of banking, you see, this BFSI ka jo bullishness aata hai na, is because I spent 20 years of my life working in banks. So I understand the inner working of a bank and how a bank, makes money and where its pitfalls are. And I'll tell you why I bought HDFC Bank and I've held on to it till today. It's because the business model that Aditya Puri brought to the table was
I will do lending only at the last resort. As a banker, that's a dramatically opposite to SBI's positioning. SBI's position was lend karo kitna, jitna bhi karo, profit banao, net interest margin. But Mr. Puri's thought process was the opposite. He first came and said, how can I make money from banking without lending? Okay. And then when I lend, how can I find the safest place to lend it? Not greed after the highest borrowing cost, that. So this was there in 2-3 things, right? First, he set up his bank as the primary bank for the capital markets. Second aspect was in lending. If you notice, corporate lending was his last resort because SBI में था. I used to go to consortium meeting. किसी में भी HDFC को नहीं देखता मैं. All the companies that we were lending, he was not there. Where was he lending? He was lending retail consumer loans. He was spreading his risk over thousands of people. So these two strategies, which is very hatke se, because the typical old style banking of which I was a part was बकरा पकड़ो, अच्छा उसको अच्छी कंपनी होनी चाहिए, मगर अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए, ले लो and make money from that. So this traditional model of banking was turned on its head by Mr. Puri and HDFC. And I said, ये तो बिल्कुल fantastic success. And you see how that is how he is able to give consistent profit growth quarter on quarter, lowest NPL levels, and his highest fee income. Right? So that business model, being a banker, so by these two picks came because I understood banking. The third stock which I picked was again because of my banking knowledge, but it was about another industry which I felt was the future of India. And that company was Prism Cement. Absolutely right. और आप तीनों स्टॉक अभी तक होल्ड करे हुए हो, मे बी 20. Yes. That friend from Prism का तो IPO का stock है मेरा. My 3 big winners. And mind you, all the 3 winners are prior to my Sundaram mutual experience. So my actual mutual fund investing experience hasn't come into this at all. Because I started my journey 15 years back in Sundaram. No? Before that I was a banker. So I use my banking knowledge to actually make these decisions and calls. सर इनसे आपके एग्जाम्पल से मुझे तो एक लर्निंग हुई कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए ना बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं होती. मतलब सॉल्यूशन आपके पास में, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व इट एंड मेक श्योर कि आप उसको सिंप्लीफाई करके अप्लाई कर सके. व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी सर. सर इसमें जर्नी में सर फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसे आप सेम फील्ड से हैं, आप सुंदरम म्यूचुअल फंड्स में देख रहे हैं, आप एक एचएनआई हैं, तो क्या आपको भी गोल प्लानिंग की जरूरत होती है या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स विदाउट गोल प्लानिंग के करते हैं? आपका क्या आउटलुक होता है इस चीज को लेके? गोल प्लानिंग में जैसे मैंने बताया कि नेचुरली मैंने अपना पूरा लाइफ की अर्निंग्स का एनपीवी करके एक ब्रॉड आइडिया तो कर लिया था, तो इन अ वे. बट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में मैं गोल प्लानिंग अप्लाई नहीं कर रहा था. आई वाज जस्ट लुकिंग एट द स्मार्ट डिसीजन मेकिंग. पर उसमें क्या होता था कि आई नेवर गॉट माय सेल डिसीजन राइट. आई फाउंड दैट मेरा डिसीजन, बिकॉज मार्केट हवा में चल रही है तो सभी का आउटलुक है कि अभी और भी हवा बढ़ेगी, राइट, इट विल गो अप. तो वो स्थिति से कैसे निकलना है, हाउ टू ब्रिंग दैट डिसिप्लिन, I realized that goal is important. And when I say goal, मैं अभी बताऊंगा कि it's a very different. Normally आप गोल कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी, मेरी रिटायरमेंट, ऐसे गोल नहीं. मैंने ऐसा बदल दिया मेरे होल प्लानिंग को कि मैंने कहा कि हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हर एक शेयर की खरीदारी, एक म्यूचुअल फंड स्कीम की खरीदारी, मैं उसके पीछे आई विल आइडेंटिफाई कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है रिटर्न्स की या अमाउंट की, और उसको मैं कागज पे लिख देता हूं, राइट. And I keep comparing it with that. So if I said that, let's say कि मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी का दाम ये होगा और ये इन्वेस्टमेंट मैं उसके लिए कर रहा हूं, तो उसका जो दाम था मैं उसको लिख देता हूं. मगर जैसे ही वो गाड़ी की रेट बढ़ती है, एक मेरे मन में था, तो मैं उसको भी ऑल्टर करने की जरूरत होती, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मीट अ स्पेसिफिक गोल. बट वन डे व्हेन दैट इन्वेस्टमेंट हिट्स दैट गोल, रिगार्डलेस ऑफ मार्केट आउटलुक, रिगार्डलेस कि हम बैड जर्नी में है, बुल जर्नी में है, रिगार्डलेस कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, मैं रूथलेसली उसको लिक्विडेट करके कर देता हूं. That discipline I have followed for the last 2 decades. So each investment has to have a goal, and I would strongly recommend this to every investor, because then the clarity in your mind कि मेरे को कब प्रॉफिट बुक करना है, क्या मेरे को कट लॉस करना है, या फिर पिछले महीने ये तो 20 रुपए थी, आज 15 में है, क्या मैं लिक्विडेट करूं या ना करूं. यू टेक दैट इन रिलेशन कि जो गोल आपने लिखा था
उसके माफिक आप डिसीजन लीजिए तो आप खुश, बिकॉज दैट गोल इज मेंट टू सर्व सम पर्पस, और वो पर्पस फुलफिल हो जाएगी. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक बात है सर. So for me, now goal planning is very important, but it is goal planning for every investment. Every decision carries with it, or I write it down because I don't want to cheat myself. नहीं तो क्या होता है ना, मैं सोच रहा हूँ कि अरे इसका 10 का 40 हो गया तो अच्छा होगा, और जब 40 आती है तो सोचता नहीं यार अभी ये 40 तो 80 भी हो सकता है. So after you liquidate, suppose you wanted to go on a holiday, right, and you liquidate that money, and the holiday gets cancelled. Then you make a fresh investment with a fresh goal with the same money. So, so what I mean is that, so you may actually not liquidate, but the decision to not liquidate is a decision. Are you getting me? My point is आपको evaluate करने की जरूरत है. It's not necessary कि आप उसको redemption करो फिर fresh investment करो, but evaluate कि जैसे आप redemption कर रहे हो, right? So that brings me to the second learning. Okay, I'll tell you a little bit later in the conversation. सर, नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन. ये आपने बिल्कुल बहुत सही बात बताई. सर, इसमें फिर कंप्लीट आपकी शेयर्स की जर्नी में, गोल प्लानिंग की जर्नी में, इन्वेस्टमेंट की जर्नी में म्यूचुअल फंड कैसे आया और म्यूचुअल फंड का क्या रोल रहा? So mutual fund आया basically well before I joined Sundaram Mutual Fund, because मैंने discover किया कि when I bought individual stocks and I look at the portfolio as a whole, the return was not equal to what the mutual fund was giving. So I was parallelly studying the mutual fund returns, and I found that the fall in the market fall and the rise in the market rise were both better than my individual stock picking, because ये concept of diversification as an individual it's very hard to do, because उतना information नहीं था मेरे पास. So though I was holding a portfolio of 40 to 50 stocks, I found that when I took the weighted average and then looked at a diversified fund in the industry, जो भी है, I found that my performance was not equal to the mutual fund performance. Okay, so that was a learning. Then I said, okay, कुछ चीज है इसमें. I started investing in mutual funds. Okay, that's when. But more importantly, when I then came to Sundaram Mutual Fund, which is 15 years ago, my understanding improved a lot more because I came from banking into mutual fund. So I carried all my analytical thought process, but understand. And then I found that as a stock picker, I bought a stock with a 10-year outlook and I held on to it for 10. I gave you 3 examples which worked very well also, but I held on to it. But I found that when I hold a 10-year mutual fund scheme, the portfolio at the beginning and the portfolio in the end are completely different. So I was 10 years staying in the capital market with the mutual fund, but it does not mean that I fall in love with a particular stock which has got a 10-year outlook. So you can have a 10-year outlook with a mutual fund without getting involved with the stocks which are a part of that portfolio, because there is somebody else who is looking at it and changing the portfolio. So you can have a clear goal-based planning for 10 years with a particular mutual fund scheme, which cannot do with a bunch of stocks. So that is the benefit, because the portfolios of it keep changing. Number one. Second is the fact that I take benchmarks very seriously. Now, most people in the market कुछ भी म्यूचुअल फंड में डालते हैं सेंसेक्स के साथ कंपेयर करते हैं, राइट? नाराजगी इसीलिए आती है क्योंकि उनको हेडलाइन में सेंसेक्स ही दिखता है. ओके, और बता रहे ये म्यूचुअल फंड ने परफॉर्म नहीं किया, बट आई नेवर फेल इनटू दैट ट्रैप, राइट? आई ऑलवेज सेड कि ये मिड कैप स्कीम है तो उसको मिड कैप सेक्टर के साथ कंपेयर करनी चाहिए. सो that helps you, because then asset allocation becomes important, then advisor becomes important, because asset allocation changes based on age, changes based on your family size, changes based on the proximity to your goals. So asset allocation combined, and that can be done only if you use a mutual fund in the right mix, because while mutual funds are long-term investments, the advisor has the ability to change the mutual fund mix to suit the changing demographic pattern of the customer. So mutual funds give you the benefit that while you may want to put for 10 years, it's not necessary that you stick for 10 years, and you have for every scheme, there is a benchmark to which you judge the performance, right? So because essentially as an advisor, when you do asset allocation, you're doing benchmark asset allocation, and then choosing the mutual fund for that benchmark, which will give alpha over the benchmark. So actually when you do asset class, you say large cap, mid cap, small cap, you're not, so
that's where the benefit of mutual fund comes in, right? In terms of the fact that I don't want to use the bad word called churn, but actually you can churn the mutual fund portfolio based on the changing dynamics of the situation and the customer needs. So that's the एब्सोल्युटली beauty of. सर यहाँ पे वापस से आपको वो सेम पॉइंट वापस से कहीं ना कहीं वापस से जस्टिफाई हुआ कि हमें कभी भी मैरी नहीं करना है स्टॉक को, क्योंकि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी अपना पोर्टफोलियो चेंज करता जाता है। Correct. सर इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है, ये अभी ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है। सर जब आप कह रहे हो कि म्यूचुअल फंड चर्न करते जाते हैं, म्यूचुअल फंड हमें लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको होल्ड कर सकते हैं, बट फिर भी कुछ तो म्यूचुअल फंड की मिस्टेक्स होंगी जो इन्वेस्टर करता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, जिसके लिए वो अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी के साथ साथ सर वो सेकंड मिस्टेक जो आपने कहा था मैं बताने वाला हूँ, वो अब आपको यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, वो सेकंड मिस्टेक था कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मैंने लर्न किया, बिकॉज आई डिड अ डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस, कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ संक कॉस्ट। तो जो कॉस्ट ऑलरेडी आपने इनकर किया उसको भूल जाना चाहिए। इट शुड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। मैं क्यों बता रहा हूं इस कॉन्टेक्स्ट में कि द डिसीजन टू सेल शुड नॉट बी लिंक्ड विद द डिसीजन टू बाई। दे आर टू सेपरेट डिसीजन। सो अगर कुछ स्टॉक मैंने 100 पे खरीदा, आज वो 80 पे ट्रेड हो रहा है, करेक्ट? तो आज मैं पोर्टफोलियो को इवेलुएट कर रहा हूं, करेक्ट? तो वो 100 से 80 का जो 20 रुपए का लॉस बैठ रहा है ना, इट हैज टू फॉर्म जीरो पार्ट ऑफ योर थॉट प्रोसेस कि ये स्टॉक को मेरे को बेचना है या होल्ड करना है। फॉर दैट डिसीजन हैज नथिंग टू डू कि क्या दाम में आपने खरीदा और क्या दाम में वो चल रहा है। आज आपके पास 80 रुपए का वो प्रोडक्ट है, वो 80 से 160 जा सकती है तो रखो, वो 80 से 60 होने का एक्सपेक्टेशन है तो बेचो। So the old cost that you incurred, the old loss, same with the gain ना। अगर मैंने 100 पे खरीदा और 120 में चल रहा है, today you have to be ruthless। वो 20 रुपए प्रॉफिट आ गया, भूल जाओ उसको। ये 120 से 150 जा सकता है या 120 से 110 हो सकता है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। मींस डीलिंग द बाई डिसीजन फ्रॉम द सेल डिसीजन कंप्लीटली। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। सर फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो वाला पॉइंट कहीं ना कहीं अभी तक पेंडिंग चल रहा है सर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की मिस्टेक जो आप चाहते हो कि शायद आपने करी हो या आपने लोगों को करते हुए देखी भी हो, कि अब आगे एटलीस्ट मत करो। शेयर्स की तो हमें समझ आ गई कि हमें हमारे डिसीजंस इंडिपेंडेंट रखने हैं और मैरी नहीं करना है स्टॉक के साथ। म्यूचुअल फंड्स में क्या मिस्टेक्स हो जाती है सर? म्यूचुअल फंड में मिस्टेक्स दो तरह के होते हैं। एक, निवेश के टाइम में वो पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं। ये बहुत बड़ी एक बुराई है, बिकॉज जो पास्ट में हुआ है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल पास्ट परफॉर्मेंस को मत देखिए, एस्पेशली द वे इट इज डिस्प्ले, यानी पॉइंट टू पॉइंट। कहीं पे भी जाओ, अब वैल्यू रिसर्च में जाओ या इसमें जाओ, कोई भी आओ, क्या देते हैं आज के डेट में, इसका 1 साल का रिटर्न क्या था, 3 साल का था, 10 साल का था। इट्स अ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, इस पॉइंट इन टाइम पे है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज अनलेस ये सेम पॉइंट इन टाइम जब आप बेचने जा रहे हो यानी अपने म्यूचुअल फंड से, तब अनलेस द सेम सिचुएशन प्रिवेल्स, इट इज नो वैल्यू। ओके, सो दैट इज नंबर वन। सेम वे जब बेचते हैं ना, what they do is again they get into comparison with other mutual funds to decide कि मैंने ये सही क्या नहीं। So why I'm pointing this out is, then you ask me कि तो क्या देखना चाहिए, अगर past returns नहीं देखे तो कैसे डिसाइड करना चाहिए? तो past returns देखने के लिए और एक टेक्निक है जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस। रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस क्या करता है, सिंपल टू एक्सप्लेन टू योर इन्वेस्टर्स, राइट? कि सपोज एक स्कीम 10 साल के लिए है, राइट? तो आपको आपकी आउटलुक है 3 साल, समझिए। तो 10 साल पहले जब स्कीम की शुरुआत हुई थी, पहले दिन आप एक 3 साल का इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। दूसरे दिन और एक 3 साल का कर सकते थे, 1 साल के बाद भी आप एक और 3 साल का। तो ये 10 साल के पीरियड में आप उसके 3 साल के रिटर्न ट्रैक करो, आपको ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे 3 साल वाले जो आपकी आउटलुक है। और देखिए कि इन 3 सालों में उस म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम रिटर्न कितना दिया, मिनिमम लॉस कितना हुआ, मैक्सिमम लॉस आपका, ऑन एन एवरेज क्या रिटर्न मिला, कितनी बार उसने बेंचमार्क को बीट किया, करेक्ट, कितनी बार उसने इन्फ्लेशन को बीट किया, बिकॉज यू वांट दैट। ये सब डेटा आपके हाथ में हो
तो देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि मेरे 3 साल के लिए इसका मैक्सिमम, यानी खुशी के दिन थे इतने हुआ, मगर नुकसान हुआ, बैड टाइम हुआ तो मेरा लॉस इतना हुआ था, तो देन यू हैव अ पास्ट परफॉर्मेंस व्हिच इज मीनिंगफुल। सो मिस्टेक यही होता है कि आप सब पॉइंट टू पॉइंट देखते हो, एक रोलिंग रिटर्न एनालिसिस व्हिच एनी एडवाइजर कैन डू। चाहिए आपको डेली एनएवी, एनएवी इंडिया से कहीं पे भी डेली एनएवी का आउटपुट मिलता है, just put it into an excel sheet, झटके कर लो। So then you compare 2 3 schemes कि how this fund manager has done in a good time, how he has done in a bad time, right? एब्सोल्युटली। And आपको 3 साल के बाद you have no idea कि good time होगा या bad time होगा, इसलिए आपको दोनों आपको लेके जाने की जरूरत है, right? That you should be aware कि आपके इन्वेस्टमेंट का अपसाइड पोटेंशियल क्या है, डाउन साइड पोटेंशियल क्या है, उस हिसाब से जाइए। एंड सेकंड चीज जो आती है, द सेलिंग डिसीजन शुड ऑलवेज बी लिंक्ड टू द गोल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट। वंस आप एक गोल डालते हो ना, तो वो गोल अचीव करते ही यू शुड लिक्विडेट। देन आपके मन में ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरे लिए अभी मेरे को सेल करना है ये स्कीम को या नहीं करना है, राइट? सो दैट्स द वन आई वुड से। एंड उसके अलावा बहुत टेक्निकल चीज है जो एडवाइजर कर सकता है, बिकॉज कंपेयरिंग टू स्कीम्स में वो जस्ट ब्लाइंडली देखते हैं, बट द पॉइंट इज दैट क्या दो स्कीम्स, दो सेबी की कैटेगराइजेशन ने बहुत हेल्प किया है टू पुट स्कीम्स के ये सब एक ही तरह होनी चाहिए, पर उसी में भी बहुत फर्क है। लाइक मिड कैप ले लीजिए, सेबी कहता है कि मिनिमम 60% मिड कैप रखना चाहिए, तो कोई फंड मैनेजर 65 और 35 लार्ज कैप में लगाएगा, कोई 65 मिड कैप में और 35 स्मॉल कैप में लगाएगा, कोई मिनिमम 65 है, कोई 90% मिड कैप में लगा सकता है। तो यू कैन नॉट कंपेयर कि सभी मिड कैप को मैंने कंपेयर किया, बिकॉज वो फंड मैनेजर की थॉट प्रोसेस आप समझिए। एंड देन इन रिलेशन टू दैट थॉट प्रोसेस, इसकी स्टॉक पिक एंड सेक्टर पिक कैसी रही, देन यू जज अ फंड मैनेजर। ब्लाइंडली देके कैटेगरी में रिटर्न देके ये किया वो किया करके करने से आपको नुकसान ये हो सकता है कि बिकॉज दैट वेरी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी मे डिलीवर बेटर इन द फ्यूचर। Correct. So that's why I'm saying that just blind comparison of the schemes is also a गलती that a lot of investors do. And यहीं पे मैं कहूंगा कि with these last 2 3 points कि advisor जरूरी है is I think something very very critical to remember, right? Mutual fund में निवेश करने के लिए बिल्कुल मैं कहूंगा कि advisor can add value in so many ways. गोल प्लानिंग की बात करी, रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस की बात करी, एसेट एलोकेशन की मैंने बात करी, राइट? ये सब में एक एडवाइजर का होना बहुत बहुत जरूरी है, एंड डेफिनेटली इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। बिल्कुल ठीक बात है सर, मतलब ब्लैंक एनालिसिस हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। मोर देन दैट, यहाँ पे तो आपने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा दी कि हमें भी और कॉशियस होकर हमारे इन्वेस्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। सर, इसमें एक और क्वेश्चन आया मेरे आप ही के आंसर से। सर, क्या इसका मतलब ये है कि हमें विदाउट गोल ऐसे रैंडम इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। फायदा क्या है? अगर देखो, जितने तक आप लॉटरी खेलते हो, रेस कोर्स में जाके उतना पैसा तो आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं। ठीक है, हर एक की होती है कि मेरे को सट्टे बाजार में कुछ करना है, तो स्टॉक मार्केट को, शेयर बाजार को सट्टे बाजार समझते हैं, पर वो एक लिमिट होना चाहिए जिसके अंदर आप कीजिए, बिकॉज ईच वन हैज अ गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट। दिवाली के नाइट तो सब 3 पत्ते तो खेलते ही हैं, तो वो बात हुई। सो देयर इज दैट एलिमेंट ऑफ पीपल के अरे मेरे को लॉटरी टिकट खरीदना है, तो डेफिनेटली कर सकते, बट दैट इज अ पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एंड यू कीप इट टू दैट लिमिट। सर, मतलब कि अगर विदाउट गोल में कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो सट्टा बोला जाएगा। आपने मेरे मुंह से बात छीन ली। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। सर, फिर अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन सर, आज तो इतना मजा आ रहा है आपके साथ डिस्कस करते हुए, लग रहा है कि यार इतनी सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ कि ये डिस्कशन खत्म ही नहीं हो। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं अभी भी आपसे और सीखना चाहूंगा। आज के दिन मार्केट को ध्यान में रखते हुए कि हम निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, मार्केट फाइनली बहुत अच्छा कर रहा है। अब यहाँ से मार्केट का आउटलुक क्या और इन्वेस्टर को क्या गलती है नहीं करनी चाहिए, वरना उनको बाद में ज्यादा सेटबैक हो सकता है। अब यहाँ पे आपकी क्या गाइडेंस है? तो बिगेस्ट गलती होगी प्रॉफिट बुकिंग टुडे। ओके, अनलेस यू नीड द मनी। आपने गोल के हिसाब से आपको अगले महीने कुछ मर्सिडीज बेंज खरीदना है या कुछ है ना करना है, तो आप लिक्विडेट कीजिए। वैसे तो ये बहुत गलत टाइम है टू बुक प्रॉफिट, बिकॉज मार्केट लाइफ टाइम हाई में है। इसका कारण क्या है और क्यों है, ये दोनों समझने की जरूरत है। इसका कारण है दो चीज। एक के भरपूर पैसा दुनिया के G4 कंट्रीज में नोट छाप हो रही है,
वो लिक्विडिटी लीक होते होते सभी देशों में जारी है। यहाँ इंडिया को उसका बहुत बड़ा हिस्सा 1.5 लाख करोड़ अप्रैल से आज तक हमारे मार्केट में एफआईएस ने निवेश किया। ठीक है, तो कारण मार्केट लाइफ टाइम में है इसके एफआईएस ने विथ बिकॉज ऑफ द टीना फैक्टर। टीना क्या होता है? देयर इज नो अल्टरनेटिव। उनको इंडिया के अलावा किसी और देश में निवेश करने की अल्टरनेटिव नहीं। वो क्यों, मैं 2 मिनट में बताता हूं। बट एट द सेम टाइम जब एक फॉरेनर इंडिया में आके निवेश कर रहा है तो कहां करेगा? उसको पता है कि कोविड की असर इंडिया के ऊपर भी है। इंडिया ने सबसे सीवियर लॉकडाउन भी कर दिया और हमारी जीडीपी भी बहुत दबाव में है। लास्ट क्वार्टर तो वो देखा आपने, फर्स्ट क्वार्टर में 24% नेगेटिव जीडीपी। तो फिर भी वो इंडिया पे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है और क्या कहां कर रहा है? क्यों कर रहा है? उसका आंसर है कि इक्विटी मार्केट में लोग आज डाल के कल पैसा बनाने की नहीं सोच रहे हैं। हर एक एफआईआई के पास गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही होती है, वो समझिए आप। तो कौन से एफआईआई निवेश कर रहे हैं? पेंशन फंड, जिसका गोल है कि मेरे को 5, 10, 15 साल में मेरे को इस मार्केट से रिटर्न आके मैं अपना पेंशन की लायबिलिटी पूरी करूं। सॉवरेन वेल्थ फंड निवेश कर रहे हैं, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, नॉर्वे में, कनाडा में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको हमारी कंट्री की सरप्लस को, हमारे देश की फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए एडिशनल इनकम चाहिए ओवर द लॉन्ग टर्म। क्योंकि तो गोल बेस्ड जो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, इसमें मैं मानता हूं हेज फंड जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो भी शामिल है, मगर एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी शामिल है। उनके लिए इंडिया के भविष्य में क्या दिख रहा है? उनको ये दिख रहा है कि आबादी हमारे पास है, लोगों को नौकरी देने की जरूरत है। नौकरी कहां से आ सकती है? हमारे देश अभी भी $2000 की पर कैपिटा इनकम में ही घूम रही है। तो हमारे देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारे देश की डिमांड से कई गुना ज्यादा है। तो चॉइस ही नहीं है हमारे देश के पास कि हम पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करो। और आज तक कौन कर रहा था? चाइना कर रहा था। चाइना की हालत में रिवर्स स्थिति हो रही है। उधर वन फैमिली वन चाइल्ड का पॉलिसी उन्होंने 10-20 साल से शुरू कर दिया, तो उनकी लेबर डिक्लाइनिंग में है, हमारी लेबर अप ट्रेंड में है। तो वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू होकर स्पेशलिटी केमिकल से सभी देशों में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करने की सोच जारी है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी जो अभी पीएलआई स्कीम सब लॉन्च किया। तो फ्यूचर स्टोरी ऑफ इंडिया इज अबाउट फॉरेन एफआईआई नहीं, एफडीआई पैसा आके इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, बिकॉज हमारे पास लैंड जबरदस्त है। वी आर द 7th लार्जेस्ट लैंड ब्लॉक इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ब्लॉक। सो लैंड लेबर सप्लाई भरपूर है 30 साल के लिए। फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स इंडिया की लेबर सप्लाई राइजिंग कर्व पे है। तो ऐसी स्थिति में एफडीआई जो आ रहा है इज गोइंग टू बूस्ट अवर फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ। और सो दीज लॉन्ग टर्म एफआईआईज आर पुटिंग मनी एक्सपेक्टिंग दैट जीडीपी ग्रोथ। दे डोंट वरी कि अगले क्वार्टर आपका नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है। They are saying कि 10 क्वार्टर के बाद क्या है? So that money which is coming, right, is coming into our market, right, which no other country, क्योंकि हमारे साथ competing countries कौन है? चाइना का तो हालत मैंने अभी बताया। फिर कौन? ब्रिक ले लो, रशिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, फिर साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। ये सब कमोडिटी रिच कंट्रीज है। रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका सबके पास कमोडिटी रिच है। दे आर नॉट पीपल रिच, लेबर नहीं है, लेबर नहीं है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक पॉजिटिव है जो फॉरेनर्स को समझ आता है, हमारे इंडियन वाले को समझ नहीं आया। ठीक है, वो एक चीज है। सेकंड चीज, अब सोचिए मार्केट की राइज के ऊपर कि यहां खरीदना था उनको एफआईएस को, क्योंकि एफडीआई आने वाला है, इसलिए एफआईएस उसके पीछे खरीदारी कर रहे हैं। अब एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं तो कहां खरीदेंगे? उनको भी कॉन्शियस है। जैसे ईटीएफ लीजिए, ईटीएफ का पैसा जो इंडिया में आता है उनका इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, नो, उनको भी डेली रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत पड़ती है जैसे म्यूचुअल फंड को। तो ईटीएफ वाले पैसे को ये नहीं हो सकता कि मैं 10 साल के बाद रिटर्न बनाऊंगा, अभी कुछ नहीं बनाऊंगा। Whereas long term pension fund या उन फंड कैन डू दैट बिकॉज दे आर नॉट लिस्टेड मार्केट में, उनका पब्लिश नहीं होता है। तो ऐसा पैसे की फोकस ये होती है कि कैसे मैं शॉर्ट टर्म में इस नेगेटिव क्षेत्र में भी मैं ज्यादा नुकसान ना मोड़ लूं, राइट, एट द सेम टाइम इस मार्केट की पोटेंशियल हमें याद है। तो वो क्या करते हैं कि गुड सेक्टर्स में गुड स्टॉक्स को खरीद रहे हैं।
इसलिए एफआईएस ने भी आके कुल 10-15 स्टॉक में ही उन्होंने निवेश किया। तो मार्केट की बढ़त के पीछे ये हाईली पोलराइज्ड रैली जो कहते हैं, कुछ गिने चुने स्टॉक जिनका फ्यूचर में कोविड का दबाव उतना नहीं दिख रहा है, एट द सेम टाइम द सेक्टर इज पॉजिटिव, जो फार्मा, आईटी, कंजम्पशन। तो यहां पे क्या है कि डाउन ट्रेंड उतना नहीं है, फार्मा का तो कोविड से पॉजिटिव ट्रेंड है, आईटी का भी कोविड से पॉजिटिव। तो गिने चुने सेक्टर्स के अंदर गिने चुने अच्छे स्टॉक्स में ज्यादा पैसा वो सेफ्टी की तौर पर लगा रहे हैं। तो इसलिए ये निफ्टी का जो रैली आया है, इट इज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ पोलराइज्ड रैली, राइट? दैट इज व्हाई निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई। अब आने वाले दिन में क्या होने वाला है? पहली चीज कि जैसे ही वर्ल्ड में रिकवरी शुरू होती है, राइट, फ्रॉम द वी शेप रिकवरी, इंडियन कंपनीज का, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज की ऑर्डर बुक बढ़ेगी, राइट? सेकेंड, ये एफडीआई आएगा तो उसका असर क्या होगा इंडिया में? माय फेवरेट इंडस्ट्री, सीमेंट, राइट, स्टील, कैपिटल गुड सप्लायर्स, राइट? जैसे नो, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी अर्निंग्स की आंकड़े देखें तो इंडस्ट्रियल, साइक्लिकल्स और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जैसे व्हाइट गुड्स, यहां पे यू विल सी द डिमांड रिवाइवल। तो ऑटोमेटिकली एफआईआईस की सोच भी will shift away from 10 to 15 stocks, because करीबन $13 trillion का liquidity is during this cycle is what the G4 countries are going to pump. So next year 1.5 साल के लिए there is no shortage of liquidity, और फेड ने कहा कि 3 साल के लिए मैं 0 के करीब इंटरेस्ट रेट को रखने वाला हूं। तो जबरदस्त पैसा, सस्ता पैसा बाहर पड़ा है। मगर इंडिया में जब भी ऐसा आएगा, वो नाउ इट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेफ्टी सेक्टर, अभी इट विल नाउ शिफ्ट टू द ग्रोथ सेक्टर, राइट? एंड ग्रोथ कहां से आएगा? फर्स्ट एफडीआई आएगा तो नई कारखाने लगाने पड़ेंगे। कारखाने की क्या जरूरत है? सीमेंट, स्टील, पेंट, एल्यूमिनियम, कॉपर, वायर, राइट? फैक्ट्रीज क्रिएट करने, कॉन्ट्रैक्टर्स क्रिएट करने, तो उनका ऑर्डर बुक बढ़ेगा। सेकेंड, गवर्नमेंट की भी बजट नजदीक जो आ रही है, गवर्नमेंट की अगले बजट क्या होगी? अभी देखिए रेटिंग एजेंसीज को उन्होंने मैनेज कर दिया कि अनाउंसमेंट्स भयंकर करे, एक्चुअल डेफिसिट पे उन्होंने असर आने नहीं दिया। मींस थोड़ा बहुत आया है, मगर टू द कंफर्ट ऑफ रेटिंग एजेंसी। तो अगले बजट में आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा पुश होगा, राइट? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पुश में भी अगेन सेम मटेरियल, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, वही इस्तेमाल होंगे। तो एफडीआई की ओर से और गवर्नमेंट की ओर से, दोनों तरफ से आप एक ब्रॉडर इंडस्ट्रियल साइक्लिकल्स की रैली देखेंगे। और एफआईएस का लार्ज कैप के अंदर ही दे विल नाउ सेल डाउन द पोलराइज्ड स्टॉक्स एंड ब्रॉडन इट टू अदर स्टॉक्स। नाउ जो स्टॉक्स वो सेल डाउन कर रहे हैं, आप सोचेंगे अरे यार फिर निफ्टी में करेक्शन आएगा। नहीं, क्योंकि ये सेम अप्रैल टू नाउ की स्थिति में जब उन्होंने 1.5 लाख करोड़ पैसा अंदर लगाया है, म्यूचुअल फंड ने 50,000 करोड़ बेचा है। बिकॉज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को डोमेस्टिक हालत से डर था, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। तो जैसे एफआई खरीद रहे थे, दे वर सेलिंग देयर होल्डिंग ऑफ दिस टू द एफआईआईस, राइट? बट नाउ व्हेन द एफआईआईस सेल, म्यूचुअल फंड्स आर सिटिंग ऑन कैश, राइट? एंड इफ यू सी, दो देयर आर नेट रिडेम्पशन इन इंडस्ट्री, something like 7,000 crore only from NFO म्यूचुअल फंड ने इकट्ठा किया पिछले 3 महीने में। So fresh investors are giving money to mutual fund, mutual funds are having cash. So जो भी वो बेचते हैं, these are good companies in good sectors. So mutual funds be happy to buy. So the downside of these polarized stocks, there will be some downside, because as the rally का leader shift होता है, तो old leader की थोड़ी प्राइस करेक्शन होगी, न्यू लीडर की बढ़ेगी, बट दैट फॉल विल बी प्रोटेक्टेड बाय म्यूचुअल फंड स्टेपिंग इन, बाइंग द गुड क्वालिटी स्टॉक्स व्हिच एफआईआईस आर सेलिंग, बिकॉज़ दे वांट टू रिलोकेट टू द ग्रोथ सेक्टर ऑफ द कंट्री, राइट? So, and at the same time, mutual funds will start reallocating the growth capital which they have into mid cap and broader market, because their FIS don't enter so much. So to me, what is going to happen is that you're going to see the next leg of the rally with both FIIs and mutual fund participating in a completely new set of sectors and stocks. So at this time को आपको liquidate करना बहुत गलत होगा, because my estimate is that next Diwali तक Sensex will be 50,000. अच्छा. Okay, because this is the reason what I explained to you, and that initially
it will go initially, it will be the large cap and the larger mid cap because FIS की खरीदारी भी होगी, but धीरे धीरे domestic mutual funds की खरीदारी will be down the curve, so you will start seeing the mid and small cap segment after about 6 to 9 months start to pick up the rally and take it forward. So so I would say the biggest mistake anybody can do is to say कि अरे मेरा इतना अभी market बढ़ गया तो मैं बाहर निकालो. No, this is actually the time to invest in a broader market portfolio. Broader market portfolio. Absolutely right, sir. Sir, इतना अमेजिंगली आपने एक्सप्लेन किया है, मजा आ गया आज तो. टुवर्ड्स द एंड फाइनल एक क्वेश्चन मैं आपके पूछ के इस इंटरव्यू को क्लोजिंग की तरफ ले जाऊंगा. फाइनल एक क्वेश्चन है, ये आज जेन्युइन हर एक इन्वेस्टर का क्वेश्चन है, टू बी वेरी ट्रू. हुआ क्या था सर, जब मार्केट करेक्ट हुआ था हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा और टूट जाए तो बाय कर लूंगा. अब बढ़ गया तो हम वेट कर रहे हैं कि चल एक बार ये बढ़ना खत्म हो जाए तब बाय कर लूंगा. जब बढ़ना खत्म होगा तब थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, फिर हम और करेक्शन का वेट करेंगे. तो ये साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन कि हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे. तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? और ये आज के दिन एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक बहुत सारे और बहुत मेजर इन्वेस्टर्स को हो रहा है और होने वाला भी आने वाले समय में. उनके लिए आपकी फाइनल टेक ऑफ एडवाइस क्या है सर? तो मैं दो चीज कहूंगा. पहली चीज मैंने ऑलरेडी बताया था कि उनको गोल्स अपना फाइनलाइज करो, आपकी इच्छाएं लिखो, आप क्या सब करना चाह रहे हैं फ्यूचर में आपके लाइफ में, और हर एक गोल के लिए आप एक सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को चुन लो और इन्वेस्ट कर लो. राइट, वो एक थॉट प्रोसेस. फर्स्ट आपको सोच अपनी, और इसमें आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी भी जज करने की जरूरत है. राइट, सो योर गोल प्लस रिस्क एंड देन यू एसेट एलोकेट अकॉर्डिंग टू दैट गोल. ये मेरा कहना मेरे लिए आसान है. जैसे आप कह रहे हैं, ये जानते हुए लोग नहीं कर पाएंगे ये. राइट, तो उनके लिए मेरा ये सलाह मैं दूंगा कि ऑलवेज स्टैगर योर इन्वेस्टमेंट, whether you do through SIP or through STP, वो आपके मन की बात है. But by staggering your investment, you are betting against your own instinct. जैसे आपने कहा मेरे को अभी मार्केट बढ़ गया लगता है, so I should not invest now. Whereas at the same time कल डर के मारे आप सोच रहे हैं और भी करेक्ट होने दो. तो by adopting a systematic approach, whether you do through SIP, whether you do through STP, or you do regularly, don't have to set up SIP, STP, but just take it every 15th of every month, or I do. So that systematic approach, that disciplined systematic approach will be the best, because then your mind is saying one thing, but your actions are saying the opposite. So you are doing a natural hedge against your fear and greed instinct. So ultimately, ये thought process जो आपने कहा, it comes because as a human being, we carry fear and greed in the same brain. Absolutely. Correct? So that is what is putting you into inaction. Correct? So the systematic, disciplined approach to investing actually is a counter to your own inner emotional fear-greed linkage. Absolutely. So simple. Rules always work. Emotion को थोड़ा सा साइड में रखा जाए. Correct. मजा आ गया सर. Sir, thank you so much for interacting with all of us. It was indeed a superb discussion, and आपने almost अपनी सारी life की कैसे drug addict, I am sure जो भी ये सुन रहे हो एक बार starting में जाके देखना, लेके एक CEO जर्नी है. Thank you so much sir for sharing everything. Means a lot to us. Thank you so much sir. Thank you. All the very best आपको और आपके सभी के subscribers को भी. Thank you sir.